Good afternoon, everybody. Friend, I know this is going to be last session, and I have been told that I will be having 1 hour from 12 to 1. So it is already 12:25. So I hope that I will be having at least 1 hour, like I can continue up to 1:30. Am I clear, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much, ma'am, for your confirmation. Yeah. Friend, today I will be sharing my experiences in the area of ensuring quality in research, which is going to be, talking on this particular area is itself is going to be very, very challenging because the reason for that is, ensuring quality in research is always going to be very challenging task. And convincing others to do quality research is again further challenging, and I have been advised to speak on this particular issue. So this is going to be again very, very challenging for me to talk on this particular issue. And therefore, my friend, I'm not going to speak anything here. Rather, what I will be doing, like whatever the practices I have adopted, and I'm adopting since last 30 to 33 years in research, those practices, those stories I will be sharing with you today. Nothing else. I'm not going to tell you anything from book. I will be sharing. Let me tell you once again that I will be sharing only those practices which I have been practicing since last 32 to 33 years. Friend, as I have been told that this is a kind of heterogeneous the mob. I mean, like audience, right? Heterogeneous. I mean to say, like you all are from various disciplines, like the teachers from social sciences, commerce and management, science, and I don't know, some few might be from engineering discipline as well. Apart from that heterogeneous feature of this audience, I know whatever the participant who are participating in this particular webinar, uh, maybe like having all these first four categories. Like some of you might be just enrolled for PhD, some of you might be in the middle of your PhD degree, like you must have registered long back and you are on the verge. I mean, you are right in the middle. Some of you might be on the verge of completion of PhD, and some of you might be, awarded with PhD degree as of today. Irrespective of any one of those category, I would like, if you really want to ensure quality in the research, as I mentioned, like ensuring quality in research is always going to be very, very challenging, and we need to have a very specific mindset for that. हमें एक अलग माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा. वो माइंडसेट के साथ अगर हम नहीं चलेंगे तो it is going to be very, very, like, challenge is going to be difficult then, because whenever, as long as you are saying challenging, it means it's doable, and moment we convert the challenge into the difficulty, is going to be almost impossible. And therefore I will request you all to do this a big, some sort of beginning exercise, because this is what, like, I'm not asking you to do this exercise today. Like the moment, like जब भी आपको लगता है कि मुझे क्वालिटी रिसर्च करना है, whatever research I am doing, I would like to ensure quality, I will request you to do this beginning exercise. What that exercise I'm talking about, it is a kind of self introspection, a SWOT analysis. We are from a teaching fraternity, right? And NAC has made it mandatory for all of us to make to have the SWOT analysis before we go for NAC assessment and accreditation. So this SWOT analysis always help us to understand where do you stand today. SWOT analysis always help us means help the institutions to understand कि वो कहाँ पर खड़े हैं, क्या वो deserve करते हैं और क्या उनको करना चाहिए, right? Similar kind of exercise need to be carried out by each and every individual if you really want to do a quality research. अगर हमें quality research करना है तो similar kind of exercise need to be done by everybody. So we need to understand what are my strengths, what are my weaknesses, and depending on my strength and weaknesses, what are going to be opportunities for me and what are going to be challenges for me. And this will help me to understand, to identify the gaps, because you see, identification of gap is going to be very, very important. हमें पता है कि जब हम literature review करते, the main purpose of doing literature review is to identify gaps. Why do we identify gap? Because once we identify gap, it will help us to understand
like rather if it will help us to prepare a comprehensive strategies to, you know, like to bridge those gaps. And therefore, if you could do this self introspection or SOC analysis right in the beginning, I'm sure that you will be able to identify gaps, what the gaps you are having, and then accordingly you will be able to bridge those gaps. You will be able to prepare a very comprehensive planning to bridge those gaps. I would also request you to write down some questions, because this is very very important. हमें पता है कि जब रिसर्च, अब अगर हमें सही मायनों में फ्रूटफुल रिसर्च करना है एंड दिस इम्पैक्टफुल रिसर्च अगर करना है, हम जानते हैं कि वी नीड टू रेज क्वेश्चन, बिकॉज रेजिंग क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन रिसर्च. And moreover, raising right question is going to be very important. It's not only सवाल करना, लेकिन क्या सही सवाल हम कर रहे हैं, that is also equally important. Therefore, my friend, I would like you to request to write down some questions whose answers you will be seeking through your research process. I'm talking about the quality. Like if you really want to ensure, if you are really particular about the quality to be ensured in your research, then you need to write down some questions whose answers you will be seeking through your research, entire research process, right? अगर ये सवाल हम जनरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम भटक जाएंगे, because those questions will help us to keep us on track. That is also equally important. अगर हम ये सवाल नहीं करेंगे तो हम भटकते रहेंगे, and then आप चाहोगे कि क्वालिटी रिसर्च करना है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग चाहते नहीं, because since we are from academic fraternity, हम सभी लोग चाहते कि हम क्वालिटी रिसर्च करें, बट पता नहीं हम कर नहीं पाते. तो हमें समझना पड़ेगा कि क्वालिटी रिसर्च अगर मुझे करना है तो what are those questions whose answers I'm seeking, right? Those questions need to be very seriously written down. And although like ये मतलब कहने के लिए बड़ा आसान लगता है, सुनने के लिए भी आपको बड़ा आसान लगेगा. So but if you want to practice it, it's not like impossible, but it's going to be really challenging. And therefore, my friend, today I'm not going to, as I mentioned earlier, I'm not going to teach you anything, because I know in this gathering there might be few people who might be like, you know, older than me as well, because I'm in this profession since last 33 years. I started my teaching career somewhere in 1988. So this is going to be my 33 years. But I'm sure कि इस ऑडियंस में कुछ लोग होंगे कि मुझसे भी ज्यादा सीनियर होंगे. तो मुझे आपको पढ़ाना बिल्कुल ही नहीं है, पढ़ाने का मेरा कोई इंटेंशन भी है नहीं. Rather what I will be doing, as I mentioned earlier, कि जो मैंने किया है, जो मैंने पाया है, जो मैंने प्रैक्टिस किया है अभी तक, that I'm going to share with you. And what would be your responsibility? Your responsibility is to cross check. Like whatever I will be telling you, you just cross check with where do you stand today. जब मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आप देखिए कि आप कहां पर खड़े हो. And if you think that, if you believe that you don't need to have any enrichment, so that you need to be very happy person, and you can have a really wonderful celebration after, once we have this session today. By this evening you can have a cup of tea with your spouse and you can celebrate like anything, because you don't need any enrichment further. And if you really think that yes, there are some issues which need to be fine tuned, then I would request you to make those corrections in due course of time, and try to be on the path of this. Am I audible, madam? No, sir. I'm not audible. Yes, sir, you are audible. Someone is disturbing. I will mute them. Okay, yes, sir, please, fine. sorry. Okay. So as I mentioned earlier, like we need to raise some questions. We need to write down answers to those. I mean, we need to write down questions. So before, because ये कहना बड़ा आसान है, तो हम let us proceed further. जैसे कि हमें क्वालिटी रिसर्च अगर करना है, तो we need to plan to begin with, right? Plan how to establish the quality in your research. मतलब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई क्वालिटी ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं कि क्वालिटी रिसर्च करना है, बट क्या करना है एक्चुअली, तो कैसे प्लान करना है, राइट? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू रेज दोस क्वेश्चंस एज आई मेंशन अर्लियर. तो ये 3 प्रोमिनेंट सवाल रहेंगे. व्हाट आर द क्वालिटी क्राइटेरिया इन योर रिसर्च your research should meet, right? ये पहले हमें समझना पड़ेगा कि मेरा जो रिसर्च है, what kind of quality criteria my research should meet, what are those quality indicators. क्योंकि जब तक हमें वो इंडिकेटर पता नहीं है,
तो तब हमें मतलब इंडिकेटर अगर पता नहीं है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, राइट? एंड देयरफॉर वी नीड टू आस्क दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटी क्राइटेरिया माय रिसर्च शुड मीट? नंबर 1. Number 2, what should this criteria be? How should this criteria be realized? ठीक है, मैंने ये तो जान लिया कि क्वालिटी क्राइटेरियन क्या है, बट कैसे उसको मतलब रियलाइज करना है, कैसे मुझे अचीव करना है? एंड देन third question would be, what is their impact on my personality, my subject and society? This is also going to be important. Like अगर मुझे कोई कहता है कि भाई क्वालिटी रिसर्च करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि what are those parameters, number 1, what are those indicators, number 1, नंबर 2 हो रहेंगे कि वो पैरामीटर्स जो इंडिकेटर्स कैसे अचीव करना है, एंड नंबर 2 वुड बी, अगर मैं अचीव करता हूं तो उसका इंपैक्ट मेरे पर्सनालिटी पे क्या होगा, मेरे सब्जेक्ट में डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड like on the society where I'm living. That is also very very important. यहाँ पर एक small story I would like to share you, because I still remember when I started my career in 1988. During those days, like I started my career from one of the affiliated college of this university. It was in Jalana. So there was one, I was very young during those days, 1988. I was just 22 years of old when I joined my academic career. एंड तब एक सीनियर प्रोफेसर हुआ करते थे हमारे कॉलेज में, हिंदी के प्रोफेसर श्याम डागा. एंड ही यूज्ड टू बी लाइक, ही वाज अ डॉक्टरेट ट्रूली स्पीकिंग, एंड ही यूज्ड टू बी, मतलब कोई ऐसे बुरे किस्म के आदमी नहीं थे. ही वाज वेरी जॉली पर्सन, काफी मतलब लोगों को समझते थे, बड़े सेंसिबल आदमी था. लेकिन एक दिन मुझे आकर उन्होंने पूछा और कहा कि यार महेंद्र, ये मुझे बताओ कि यार ये XYZ बंदा है, ये पीएचडी के पहले भी बेवकूफ था, पीएचडी के बाद में भी तो बेवकूफ है, तो पीएचडी करके फायदा क्या है? आप ये मत समझिए कि वो पीएचडी नहीं थे, ही वाज पीएचडी, बट स्टिल लाइक ही यूज्ड टू क्रैक दिस काइंड ऑफ जोक्स. कोई इंटेंशन बुरा नहीं हुआ करता था, लेकिन रियलिटी रिफ्लेक्ट हुआ करती थी कि वो कहते थे कि फॉरगेट अबाउट जोक, वो कहते थे कि मुझे बताओ अपार्ट जोक अपार्टली, मुझे बताओ कि ये जो बंदा था, ये पहले से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जब से ज्वाइन हुआ हमारे कॉलेज में देख रहा हूँ, ये पहले भी ऐसे बेवकूफी था और पीएचडी होकर 4-5 साल हुए, इसमें कोई फाइन ट्यूनिंग नहीं, पर्सनैलिटी तो वैसी की वैसी है. तो मुझे बताइए कि अगर पीएचडी के बाद भी, इफ यू डोंट हैव फाइन ट्यूनिंग इन अवर पर्सनैलिटी, द वे इन विच वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट, अवर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अवर मैच्योरिटी, अगर ये कुछ भी अगर पीएचडी के बाद में फाइन ट्यूनिंग नहीं हो रहा है, तो बताइए ना मुझे क्वालिटी कहाँ पर है? अब बताइए ना मुझे, लोग सवाल क्यों नहीं करेंगे? हमें देखिए, एक जमाना था गुरुकुल का कि टीचर्स यूज्ड टू बी रिस्पेक्टेड लाइक एनीथिंग. आज देखिए कि टीचर्स आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड, बट इट्स नॉट लाइक एवरीबॉडी. ऐसा नहीं कि आज किसी भी टीचर को रिस्पेक्ट नहीं मिलता. देयर आर इवन टुडे, आज भी देयर आर मेनी टीचर्स हु आर बीइंग रिस्पेक्टेड लाइक एनीथिंग. आई नो दैट, राइट? तो लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखेंगे तो आज टीचर्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, पीएचडीज को उतना सम्मान सोसाइटी में नहीं मिलता. रीजन ये है कि भाई आप पीएचडी करने के बाद आपने जो 4 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो पीएचडी में बिताए, जो भी आपने काम किया, व्हाट एवर रिजल्ट्स यू हैव, डज इट हैव एनी इंपैक्ट, सोसाइटल इंपैक्ट? अगर नहीं है तो फिर व्हाट द हेल यू आर डूइंग? क्यों काम कर रहे हो आप? क्या फायदा क्या है? तो इसलिए दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो क्वालिटी क्राइटेरिया हम जो कह रहे हैं कि डज इट हैव एनी इंपैक्ट ऑन योर ओन पर्सनैलिटी, आपको देखना पड़ेगा. नंबर 2, डज इट हैव एनी इंपैक्ट ऑन योर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सब्जेक्ट, एंड एट द एंड जो भी सब्जेक्ट आपने समझ लिया है, जो भी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी है, जो भी आपने चिंतन मनन पिछले 3 साल में किया है, व्हाट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी? डज इट हैव एनी, विल इट बी हैविंग एनी इंपैक्ट ऑन सोसाइटी? अगर ये नहीं है तो then it is useless. So these are some of the questions that need to be raised, and so that you will be able to prepare a comprehensive planning for ensuring quality in the research. So we were talking about the quality criteria, quality indicators. So let me show you first what are those quality indicators of quality research. Indicators of quality research. Number, there could be many, but this is out of my own experience, as I mentioned earlier. अगर कोई और अगर रिसर्चर है तो वो कुछ और इसमें ऐड भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है, बट दिस इज माय ओन परसेप्शन. जैसे मैंने बताया कि जो मैंने किया है, जो मैंने पाया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने प्रैक्टिस किया है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे. So this there are, as per my perception, there are 7 quality indicators of quality research. Number 1, originality. What original? I'm going to speak more detail about each and every indicator, but like quickly let me summarize in one statement. Originality. What originality we are talking about? Are our strategies are coherent with genesis of the subject?
like whatever strategies we have adopted in research, are they coherent with genesis of the subject? If it is not, it means that there is some हम भटक रहे हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना यार कॉपी पेस्ट रिसर्च हो रहा है आजकल, ओरिजिनल रिसर्च तो हो ही नहीं रहा। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो मेरे स्ट्रेटेजीज मैंने जो अडॉप्ट किए हैं, आर दे कोहेरेंट विद जेनेसिस ऑफ माय सब्जेक्ट? Novelty, second criteria is going to novelty. Does your analysis provide any new conceptual version of the data? Because सभी लोग कहते हैं कि मेरा तो डेटा बहुत नॉवेल है, अगर नॉवेल है तो दिस इज द क्वेश्चन, डज योर एनालिसिस प्रोवाइड न्यू कंसेप्चुअल वर्जन ऑफ डेटा? इसका सवाल, ये जो सवाल है ना, इसलिए जैसे मैंने पहले बताया कि रिसर्च में सवाल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कीप ऑन क्वेश्चनिंग, एंड ऑब्वियसली द क्वेश्चन should be very clear. It should not be ambiguous, right? It should be unambiguous questions, like very clarity बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब उसके सवाल तब उसके जवाब आप ढूंढेंगे। थर्ड indicator, resonance. What is resonance? Does your outcome have coherence with established facts? This is also important, because हमें कोशिश ही नहीं करते, हमारे आउटकम है, does it have any coherence with established fact? क्योंकि established fact कुछ और है और हमारे आउटकम कुछ और है। Does it have any coherence? तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं रहा तो क्वालिटी इंश्योर नहीं कर पाओगे आप। सोशल रेलेवेंस एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द सोशल एंड थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ माय वर्क? जैसे मैं पहले से बता रहा हूँ कि जो काम मैंने किया है, जो पिछले 3-4 साल में जो पीएचडी में आपने बिताए हैं, और इवन आफ्टर पीएचडी, लाइक इफ you already done PhD but you are doing research later too, तो आप सोचिए, अपने आप को सवाल करिए कि whatever outcome I am having, ये किसी समाज के, मतलब सोसाइटी के किसी क्रॉस सेक्शन के काम में आ रहा है या नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्यों समय बर्बाद कर रहा हूँ? नंबर 1। नंबर 2, नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कुछ हमारे नेशनल मिशन होते हैं, नेशनल प्रायोरिटीज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, क्लीन इंडिया है, राइट? देन देयर आर सो मेनी मिशंस, राइट? तो ये इस मिशन के साथ में मेरा कोई रिसर्च टॉपिक जुड़ा हुआ है क्या? क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ आई डोंट हैव any correlation with either social relevance or national importance, again there would be a very great questions raising. Usefulness, next parameter is usefulness. Does your analysis offer interpretation that people can use in their everyday words? This is very important, क्योंकि यूजफुलनेस क्या है? क्योंकि जो डे टू डे लाइफ में, अगर मेरा जैसे कि मान लो मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, एंड देन आई एम ए सिटीजन ऑफ नागपुर सिटी, तो मैं ये देखूंगा कि भाई इस यूनिवर्सिटी में जो लोग काम कर रहे हैं, इनका रिसर्च अगर मेरे काम का नहीं है, तो यूनिवर्सिटी को मेरा कनेक्टिविटी होगी कैसी? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था कि यूनिवर्सिटी शुड बी वेल कनेक्टेड टू द सोसाइटी। वेल कनेक्टेड टू द सोसाइटी, व्हाट डज इट मीन? What does it mean? That the teachers from the university, from the colleges, they should identify the societal issues, and accordingly they need to try their level best to resolve those issues. Forget about resolve करना, forget about उसको eradicate करना, लेकिन कम से कम कुछ हद तक 0.1%, 0.2% तक अगर हम पहुंच पाए, तब कई बात बनेगी ना। तो कनेक्टिविटी, जो डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि कनेक्टिविटी शुड बी कनेक्टेड टू द सोसाइटी, कनेक्टिविटी होगी कैसी? This is the platform. This is the platform that this like UGC has provided as research platform to get yourself connected. खाली पढ़ाना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं, पढ़ाना तो like teaching तो एक one of the responsibilities है. Apart from my teaching learning process, what are the the way out, like how I am getting connected to the society? And number 6 parameter is credibility / credential of research scholars and topic. So, like as far as the topic is concerned, credibility of the topic is concerned, is the data sufficient to merit my claim? Whatever claim I would like to make, or whatever claim I am making, is that whatever data so far I have generated from my research, whether that data is going to be enough to substantiate my claim? क्योंकि हम hypothesis लिखते हैं शुरुआत में, after literature review we always written down और hypothesis में बड़े claims हम करते हैं, लेकिन at the end of the process we never test. ऑफिशियली हम hypothesis test करते, लेकिन मैंने कभी भी, क्योंकि पिछले 33 इयर्स में, क्योंकि मेरे कम से कम 2 टर्म गए हैं आरआरसी में, मैं एज इन द कैपेसिटी ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इन द कैपेसिटी ऑफ आई हैव RRC member of many universities as well. I have been attending a Viva Voce, a PhD Viva Voce since years together. लेकिन कभी मैंने ऐसा किसी रिसर्चर को सुना नहीं कि वो कहते
मतलब he made a statement that this was my hypothesis. Accordingly, I prepare a plan. Accordingly, I did the experiment. I got the data, and when I interpreted it, when I tested my hypothesis, I could see that there was something wrong with my hypothesis. So I went back. I made the changes in my hypothesis and redrafted, re-prepared my strategies, and again started working. So I have never seen that. तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी होता है, हम कभी भी कहते हैं कि आपके पास प्लान ए और प्लान बी होना चाहिए. तो प्लान बी क्यों होना चाहिए? बिकॉज whenever something is wrong with your plan A, if your plan A is not working, you must be able to focus on your plan B. लेकिन प्लान बी अगर हम यूज ही नहीं करेंगे, उसको एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, तो प्लान बी जब भी आप आपको बताऊं कि जब भी आप प्रोजेक्ट लाने जाएंगे, बिकॉज यू आर ऑल टीचर्स, जब आप किसी भी फंडिंग एजेंसी को जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, तो दे आर गोइंग टू ऑलवेज आस्क यू, ओके दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट इज योर प्लान बी. सो व्हेनेवर लाइक यू मे गेट कंफ्यूज विद दैट, व्हाट इज प्लान बी, राइट? तो उसका मतलब ये है कि भाई मान लो आप तो प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आफ्टर डूइंग दिस यू आर गोइंग टू अचीव दिस, बट समथिंग वेंट रॉन्ग, बिकॉज यू नो hypothesis is always hypothesis. Hypothesis is always hypothesis, right? It is like nobody can take 100% guarantee. So there could be some circumstances, like because of one or other reason you may not reach your destination, and as a result of that you need to go back and see like what was wrong with that, right? So if this is what the credibility of the topic is going to be. So whatever data you have generated, you need to cross verify that whatever claim I made in the hypothesis, whether this data is going to be enough to substantiate my claim. If not, you need to go back, you need to keep on collecting data. Unfortunately, unless we do this, we will not be able to ensure the quality. And the last parameter is going to be research publication in Journal of International Repute. At the end of the day, आप अगर मैं मुझे बताओ कि आप कितना भी क्वालिटी आप मतलब बताते फिरिए घूमिए, लेकिन जब तक आपके पास क्वालिटी जर्नल के पब्लिकेशन नहीं होंगे, nobody is going to trust you. Nobody going to trust you. क्योंकि आपको अगर आप चाहते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिकॉग्निशन मिले, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल रेप्यूट के जर्नल्स क्या होते हैं एंड व्हाट उसमें पब्लिकेशन करने के लिए क्या हमें करना पड़ता है. सो लेट मी गो अहेड एंड इलैबोरेट each and every these parameters and indicators in more detail. Like whenever we are talking about originality, again we need to raise some questions. What are those questions? Like, are my strategies coherent with genesis of the subject? ये मैंने पहले ही बताया. Does my analysis provide generic interpretation of the data? हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो analysis मैं कर रहा हूँ, does it is that analysis providing generic interpretation of my data which I have generated? If not, you need to go back. You need to go back, keep on collecting. Third one is going to be, how does my theory challenge, extend or refine current ideas, concept and practices? जो theory मैंने मतलब propose कर रहा हूँ, whether that is going to challenge or extend or refine current ideas, concept and practices. ये जब तक नहीं होगा तब तक वो ओरिजिनल जो हम कहते हैं ना, ओरिजिनल होना चाहिए रिसर्च, ओरिजिनल होना चाहिए रिसर्च, ये है मायने ओरिजिनल रिसर्च की. जब तक हम इस बातों पे ध्यान नहीं देंगे तब तक हम ओरिजिनल रिसर्च की तरफ जा नहीं पाएंगे. नॉवेल्टी, हाउ द नॉवेल्टी कैन बी इनकलकेट, ये तो बड़ा सवाल है माय फ्रेंड, कि हाउ नॉवेल्टी कैन बी इनकलकेट इन अवर रिसर्च. क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि मेरा हम नॉवेल ही काम कर, सब एवरीथिंग व्हाटएवर वी आर डूइंग इज नॉवेल. उसके लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्टोरी में, जैसे मैंने पहले बताया ना कि आई एम गोइंग टू टेल यू स्टोरीज, आई एम गोइंग टू टेल यू वन रियल स्टोरी रादर, बट लाइक वो स्टोरी में ये किसी और की स्टोरी है, बट मैं अपने आप को वहां पर रखकर आपको बता रहा हूँ. एक रिसर्च स्कॉलर ने मुझसे शेयर की थी स्टोरी, तो आई थॉट लेट मी टेल यू द स्टोरी. तो स्टोरी ऐसी है कि दैट रिसर्च स्कॉलर वर वेरी जेन्युइन रिसर्च स्कॉलर, वेरी सिंसियर रिसर्च स्कॉलर. उन्होंने बेचारे ने क्या किया, बहुत सारे रिसर्च पेपर कलेक्ट किए, लगभग 50 से ज्यादा. उसमें सभी देखा कि व्हाट द अदर रिसर्चर्स हैव डन, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेथोडोलॉजी क्या थी, उन्होंने इंटरप्रिटेशन कैसे किया डेटा को, उनके कंक्लूजन्स क्या रहे,
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो कंक्लूजन में इश्यूज क्या थे, एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना प्लान बनाया एंड डिड द एक्सपेरिमेंट, कुछ डेटा मिला, मैन्युस्क्रिप्ट ड्राफ्ट की एंड ही हैज सबमिटेड मैन्युस्क्रिप्ट। तो उनको लगा कि भाई इतना रिगरस मैंने काम किया तो ऑब्वियसली मेरा तो नॉवेल हो गई काम। तो व्हेन ही सबमिटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू द जर्नल, ऑन सेकंड डे ही गॉट ईमेल फ्रॉम the editor that you are I am hereby rejecting your manuscript because your manuscript doesn't have any novelty। बड़ा मायूस हुआ बंदा, क्योंकि उनको लगा कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की, उसके बावजूद ये एडिटर कह रहा है कि मेरे मैन्युस्क्रिप्ट में कोई नॉवेल्टी है नहीं। एंड देन ही वेंट अहेड एंड कॉल दैट एडिटर। मतलब अभी तो आपको पता है कि यू कैन हैव द कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ एडिटर्स, एंड ही कॉल अप हिम एंड देन स्टार्टेड स्पीकिंग कि देखो यार आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मैंने तो ये सब किया है जो मैंने पहले आपको बताया ना, ये सब मैंने किया है, तो आप क्या अलग चाहते हो नॉवेल्टी के लिए। देन एडिटर स्टार्टेड आस्किंग कि भाई साहब आप जो कह रहे हैं कि आपने रिगरस लिटरेचर रिव्यू किया, मुझे कम से कम बताओ तो कि आपके कौन से रिसर्च जर्नल्स आपने ढूंढे, कौन से रिसर्च जर्नल के पेपर आपने देखे। तो ही स्टार्टेड टेलिंग इंटरनेशनल जर्नल ऑफ दिस एंड दिस, पब्लिश इन दिस एंड दिस। आजकल आपको पता है कि कैश प्रमोशन के लिए देयर आर मेनी वो जर्नल्स आर मोर फ्लडेड लाइक एनीथिंग। आपको पता होगा कि यूजीसी लिस्टेड जो भी जर्नल्स थे, लाइक 50% ऑफ जर्नल्स यूजीसी ने हकाल दिया, बाहर निकाल दिए, क्योंकि उसमें कोई क्वालिटी नहीं थी, राइट। तो ऐसे जर्नल्स आजकल आप कहीं किसी भी सिटी में जाइए, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, आप फॉरगेट अबाउट सिटी में जाने की जरूरत नहीं, आफ्टर एवरी सेकंड डे आपकी ईमेल में मैसेज आएगा कि भाई हम ये पब्लिश करने वाले हैं, आप इतना हम चार्जेस करते हैं, आप आपका पेपर भेज दीजिए विद इन 1 मंथ, और फॉरगेट अबाउट 1 मंथ, उससे भी कम समय में आपका हम पेपर पब्लिश कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि आजकल तो जर्नल के टाइटल ही है पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल, क्योंकि यूजीसी ने कहा ना कि पीयर रिव्यूड चाहिए, तो इसलिए पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल विद दिस एंड दिस इम्पैक्ट फैक्टर। उनको पता भी नहीं कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन इम्पैक्ट फैक्टर देखती है, ये भी लोगों को पता नहीं। तो जब ये बंदे ने बोलना शुरू किया तो वो एडिटर ने कहा कि भाई साहब देखो, आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं कि जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट क्या होते हैं, आपने गलत जर्नल को ढूंढ कर ऐसे जर्नल्स को आपने आपके सामने रखा कि जिसमें तो रिपीटेटिव काम हो रहा है, सबस्टैंशियल सबस्टैंडर्ड जर्नल्स है जिसमें पूरा कॉपी पेस्ट रिसर्च है, तो उसमें आपको नॉवेल्टी मिलेगी कैसी। एंड देयरफॉर माय फ्रेंड, इफ यू रियली वांट टू हैव द नॉवेल्टी, हमें सवाल करने हैं, हैव यू मेड रिगरस लिटरेचर रिव्यू, रिगरस इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। क्वांटिटी मींस आपको नंबर, तो मतलब आपको तो नंबर ऑफ पेपर तो ज्यादा देखने ही पड़ेंगे, बिकॉज इफ यू आर डूइंग लेट अस से दिस इज मंथ ऑफ मार्च, अगर मुझे अप्रैल फर्स्ट वीक में मेरे पीएचडी का सिनॉप्सिस सबमिट करना है, प्री पीएचडी सिनॉप्सिस जो रजिस्ट्रेशन समय हम देते, वो अगर करना है, या तो आपको नया रिसर्च शुरू करना है, अगर अप्रैल से आप शुरू करना चाहते हो, इफ यू आर डूइंग लिटरेचर इन द मंथ ऑफ मार्च, आपको मार्च तक जितने भी रिसेंट पेपर है और ओल्ड पेपर भी, दोनों को ढूंढना पड़ेगा आपको। मतलब वो रिगरस क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में नंबर काफी होने चाहिए, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आपको समझना पड़ेगा कि जब इंटरनेशनल रेप्यूट के जर्नल जो है, क्या वो आपको पता है कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट क्या होता है, आपको पता है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट एज वेल, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन क्वालिटी रिसर्च। तो आपको मैं बताऊंगा कि इंटरनेशनल रेप्यूट किसको कहा जाता है, so that I'm going to tell you. So we need to identify journal of international repute, and then it's not only that, we need to identify journal of the journals in your focus area as well. Let us say, आपको बताओ कि ऐसा माना जाता है कि स्कोपस इंडेक्स एंड वेब ऑफ सब इंडेक्स जर्नल्स आर like one of like these are the worldwide recognized journals। मतलब आपको पता होगा NIRF में भी आजकल पूछा जाता है, एंड NAAC में भी पूछा जाता है कि how many faculty members from your college or university publishing data in Scopus Index and Web of Science Index journals। So it means like Scopus Index and Web of Science Index journals are world class journals। दूसरा है कि impact factor। आपने यूजीसी के कैस के गाइडलाइन में पढ़ा होगा कि इफ यू आर हैविंग द पेपर पब्लिश इन द थॉमसन रूटर इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, देयर कुड बी ऑगमेंटेशन इन योर रिसर्च स्कोर। मतलब रिसर्च स्कोर में आपका ऑगमेंटेशन भी हो सकता है अगर थॉमसन रूटर इम्पैक्ट फैक्टर है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि थॉमसन रूटर इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, क्योंकि आजकल जर्नल में लिखा होता है कि विद इम्पैक्ट फैक्टर, ग्लोबल इम्पैक्ट फैक्टर, अलग अलग 5-5, 10-10 इम्पैक्ट फैक्टर लिख कर देते। आपको मैं इम्पैक्ट फैक्टर
क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। आपके कुछ लोगों को पता होगा तो कोई बात नहीं, जिनको पता नहीं उनके लिए नया होगा। सो आपको पता देखना पड़ेगा कि वो जैसे कि इम्पैक्ट फैक्टर की बात मैं कर रहा था कि आपने थॉमसन रूटर के 2 जर्नल्स आपने चुन लिए, एक है 10 इम्पैक्ट फैक्टर का, दूसरा है 5 इम्पैक्ट फैक्टर। बोथ जर्नल्स आर गुड, इवन लाइक जर्नल हैविंग इम्पैक्ट फैक्टर 5 और 10 बोथ आर गुड। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उस जर्नल में आपके सब्जेक्ट के कितने पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। इट्स नॉट ओनली इम्पैक्ट फैक्टर, आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। जैसे कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, थॉमसन रूटर इम्पैक्ट फैक्टर है, लेकिन उस जर्नल में आपके सब्जेक्ट के ओनली 5% पेपर्स आर गेटिंग पब्लिश, ओनली 5%, तो वो जर्नल आपके काम का नहीं होगा ना। इम्पैक्ट फैक्टर भले ही ज्यादा है, लेकिन ओनली 5% आर्टिकल्स आर पब्लिशिंग इन दैट जर्नल। तो आपको देखना पड़ेगा ऐसा जर्नल कि जिसमें अराउंड 90% पेपर आपके फोकस एरिया के पब्लिश होने चाहिए। तो इम्पैक्ट फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे जर्नल को आइडेंटिफाई करना है आपको कि जिसमें आपका फोकस एरिया जो है ना, वहां के उस फोकस एरिया की जर्नल्स पेपर्स पब्लिश होते हैं। And last point is identification of potential research group across the globe. This is also equally important because अगर मान आपको नॉवेल्टी इनकलकेट करना है, नॉवेल्टी एंश्योर करनी है आपके रिसर्च में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में विद इन महाराष्ट्र, जैसे कि मान लो आप विदर्भा में रहते हो, तो विद इन विदर्भा, विद इन महाराष्ट्र, विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया कौन से पोटेंशियल ग्रुप है जो इस एरिया में काम करते हैं वहां। हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वेरी जेन्युइन रिसर्च है, नागपुर में आप काम कर रहे हो, वेरी जेन्युइन, वेरी हार्ड वर्किंग, सिंसियर, लेकिन आपको जो है ना ये आखिरी पॉइंट पता नहीं है। आपको मतलब आपने देखा ही नहीं कि दुनिया में आपके एरिया में कौन कौन काम कर रही है, आपको पता ही नहीं है। आपने खाली कुछ जर्नल, क्योंकि देखिए आप अगर लिटरेचर रिव्यू करते समय 10-12 गुड जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट आइडेंटिफाई कर भी लोगे तो भी आपको पता नहीं ना, क्योंकि देयर कुड बी एन नंबर ऑफ जर्नल्स। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में, मतलब आपके विदर्भ रीजन में, आपके महाराष्ट्र में, आपके इंडिया में, इंडिया के बाहर भी आपके एरिया में काम करने वाले फोकस रिसर्च ग्रुप कहाँ है। आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई दोस एंड देन यू नीड टू कीप ऑन ट्रैक ऑन देयर रिसर्च, मतलब वो क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा पता है, जैसे कि मान लो 6 महीने पहले आपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करना शुरू कर दिया, एंड 6 महीने पहले उस ग्रुप में भी जो आपको पता नहीं उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। आज आपका काम हुआ, आपने पेपर लिखा, पेपर सबमिट किया, बट बाय दैट टाइम दे वर जस्ट अहेड ऑफ यू। आपके 15 दिन पहले उन्होंने पेपर पब्लिश कर चुके हैं। तो क्या होगा कि 15 दिन पहले तो आपका कंसेप्ट नॉवेल था, बट 15 दिन पहले क्योंकि उन्होंने पेपर सबमिट किया और पब्लिश किया, योर आइडिया इज नॉट गोइंग टू बी नॉवेल टुडे। So novelty need to be checked after every 6 months. Let me tell you, my friend. Literature review हम क्या करते हैं? Literature review right in the beginning करके और आराम से बैठ जाते हैं। No, like before doing experiment, before collecting data, जैसे social sciences में ज्यादातर data collection आप करते हो, तो before collection of data, do literature survey, ensure novelty, and after collection of data, जब आप interpretation करने के लिए बैठे हो, तब भी देखिए कि क्या हो रहा है इर्द गिर्द। आप जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हो उस टॉपिक में कुछ लोग कहाँ पर है अभी, क्योंकि आपको you need to ensure that you are well ahead of them, otherwise novelty cannot be ensured, and therefore this kind of activity need to be done to ensure the novelty in your investigation. Next point hoga, for inculcating novelty, I would request you to do this viva analysis, because this is going to be very very important. Kaizen concept, because this has got me tempted to tell you Kaizen concept as well. Kaizen is basically Japanese business philosophy. ये दिस इज मेंट फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड पोटेंशियल पर्सनल एफिशिएंसी। ये जापान में पहले एक समय था कि इट यूज्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इन इंडस्ट्री में। जैसा कि इंडस्ट्री में क्या हुआ करता था पहले कि मान लो मैं किसी भी एक सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, एक सिस्टम पे, एंड इफ आई एम लेट से आई एम डूइंग सम डिजाइनिंग, ओके, कुछ डिवाइसेस की डिजाइनिंग कर रहा हूँ, जैसे कार कंपनी में मैं हूँ और कार के जो मॉडल्स होते हैं ना उसको डिजाइन करने का काम करता हूँ। जो सॉफ्टवेयर मेरे पास है उस सॉफ्टवेयर से मैं एवरी डे आई एम कमिंग अप विद 2 इनोवेटिव डिजाइन एवरी डे, राइट। अभी तो मेरा बॉस क्या कहेगा मुझे, मेरा बॉस कहेगा कि महेंद्र देखो आपको क्या करना है, अभी आप जो है एवरी डे यू आर कमिंग अप विद ओनली 2 डिजाइन्स, नाउ आफ्टर 1 मंथ आई एम गोइंग टू गिव यू 1 मंथ टाइम। 1 महीने के बाद मुझे 2 के बजाय 3 डिजाइन चाहिए, 2 के बजाय 3 डिजाइन। सो दिस इज अ काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट। तो 2 के बजाय मुझे 3 चाहिए, क्या करना है, इट इज योर हेडेक, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट।
कुछ इंप्रूवमेंट क्वालिटेटिव होंगे, वो कहेंगे कि ठीक है दो ही आप क्वालिटी, दो ही आप डिजाइन मुझे दो, लेकिन यू आर नॉट लुकिंग एट दिस पोल्यूशन पैरामीटर, राइट? जो इमिशन पोल्यूशन इमिट करता है व्हीकल, उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे थे, बट नाउ आई वुड लाइक यू टू एंश्योर दैट इट शुड बी पोल्यूशन फ्री व्हीकल. सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, ये इंप्रूवमेंट के आपको टारगेट दिए जाते हैं, एंड इफ यू डोंट डू दिस यू आर गोइंग टू बी रिमूव्ड. This is what it is happening even in India today in industry. This is what it is happening. Don't you think that this kind of Kaizen need to be adopted even in academics? हम लोग तो academics में बड़े बेजिम्मेदार हो गए, accountable कुछ रहे ही नहीं हम. Because I'm saying हम, because you know we are teaching fraternity. देखिए हमारे जब बच्चे, हमारे पास जब दूसरों के बच्चे जब आते तो हम बड़े उतने अकाउंटेबल नहीं होते. हम we always blame the student, we always blame the system, we always, मगर हम कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर खुद पर लेते ही नहीं. हम अगर मान लो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही नहीं हो रहा, हम कभी भी ब्लेम अपने आप पर नहीं लेंगे. हम या तो कहेंगे प्रिंसिपल सही नहीं है, वाइस चांसलर सही नहीं है, यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, या सिलेबस सही नहीं है, अब व्हाटएवर, बट वी नेवर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन वही हमारे खुद के बच्चे अगर किसी टीचर, किसी कॉलेज और स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाते हैं, तब लेकिन हम टीचर्स को ब्लेम करना पसंद करते हैं. हम कहते हैं कि नहीं ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, वो टीचर सही सिंसियर नहीं है, पढ़ाई करके नहीं आता. वी ऑलवेज ब्लेम द टीचर्स व्हेनेवर आवर किड्स आर लर्निंग इन अदर इंस्टीट्यूशन. तो हमें जिम्मेदारी लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो आई बिलीव दैट दिस काइजन concept need to be adopted in academics so that all those fine tuning process can be done. ये नए पॉलिसी खाली only having new policy is not going to serve the purpose. नई पॉलिसी तो पेपर पे बड़ी अच्छी है, बट इम्प्लीमेंटेशन का क्या? इम्प्लीमेंटेशन के लिए माइंडसेट होना चाहिए. वो माइंडसेट का क्या? जब तक हम हमारा माइंडसेट नहीं सही करेंगे तब तक कोई नई पॉलिसी हमारी रिवॉल्यूशन इंडिया में नहीं ला सकती. सो फॉरगेट अबाउट दैट. सो आई वांट यू टू डू वाइवा एनालिसिस फॉर योर रिसर्च. I want you to do Viva analysis for your research. What kind of Viva analysis need to be done? You see, these are some of the points. Why current and previous study have been done on the issues to be studied. मतलब जिस टॉपिक में मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ रिसर्च में, उसमें अभी क्या चल रहा है और पहले क्या हो चुका है. What is the available information on the magnitude, nature और classes. मतलब वो जो information available, उसका magnitude क्या है, उसका nature क्या है, उसका class क्या है. Right? What are the present gap? This is what it is important, because identification of gap is going to be very important. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो literature survey है, literature survey help us to identify the gaps, right? And most importantly, what makes the problem worth studying. आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या करने से ये जो problem मैं investigate कर रहा हूँ ये worthwhile होगा, ये वर्थ कैसे बना पाऊं. एंड मोर ओवर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, थोड़ा ही लिटरेचर रिव्यू करते हैं और हमें पता चलता है कि यार इस टॉपिक में किसी ने काम ही नहीं किया. वी गेट एक्साइटेड, हमें लगता है कि अब तो बस मैंने रेस जीत लिया. अरे नहीं, आपको समझना पड़ेगा, आपको व्हाई हैज द प्रॉब्लम नॉट बीन टैकल इट. अगर मान लो आपको पता चलता है कि यार मैंने 2-4 पेपर देखा और उसमें मुझे पता चल गया कि ये प्रॉब्लम किसी ने हल ही नहीं किया, अभी तक एड्रेस ही नहीं किया, आपको देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ. क्योंकि यू सी इन एवरी कंट्री, आपके उस देश के, उस कंट्री के कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, कुछ रेगुलेटरी रूल्स होते हैं. वो रूल्स के अंदर अगर कुछ टॉपिक नहीं आते तो आप उसमें कोई रिसर्च नहीं करेगा. आप अगर वो ना समझते हुए एक्साइट होके आप काम करना शुरू करेंगे तो 6 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि यार इसमें तो रिसर्च हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेटरी एडवाइजरी स्कीम्स, राइट. तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम अगर इनोवेटिव लग रहा है आपको, तो आपको लग रहा है कि अगर किसी ने काम नहीं किया तो इंश्योर करें कि क्यों नहीं किया. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट यू आर गोइंग टू डू टू ब्रीच द गैप. मतलब ये जो गैप आपने आइडेंटिफाई किया, तो वाइवा एनालिसिस में ये इंपॉर्टेंट है कि आप गैप आइडेंटिफाई करेंगे एंड यू विल बी मेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग टू ब्रीच दोस गैप. एंड देन these are the some of the question that you need to ask while selecting problem. ये एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसलिए मैं इसके ऊपर समय नहीं बिताऊंगा अभी. थर्ड वन इज रेजोनेंस. What is resonance? Does your outcome has coherence with established fact? This is very very important. जो मेरे आउटकम है, जो मेरा आउटकम मुझे मिला है, established facts के साथ में उसका कोई कोहेरेंसी है या नहीं. अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा, मैं कहीं बायस हूं, आई एम बायस. क्योंकि वो रेजोनेंस जब तक नहीं आएगा तब तक वो क्वालिटी एंश्योर नहीं कर सकते. डू द स्ट्रेटेजीज डिपिक्ट द फुलनेस ऑफ द स्टडीड एक्सपीरियंस. जो स्ट्रेटेजीज मैंने जो अडॉप्ट की है वो कंप्लीटनेस का मुझे फीलिंग दे रही क्या. डज योर स्टैंडर्ड थ्योरी मेक सेंस
to your participant or people who share their circumstances. मतलब आपका जो theoretical knowledge है, जैसे मान लो आप सर्वे बेस्ड रिसर्च कर रहे हो, आपने डेटा कलेक्ट किया है, राइट? जो पार्टिसिपेंट है, जो पार्टिसिपेंट का डेटा आपने कलेक्ट किया ना, अकॉर्डिंगली यू आर मेकिंग सम कंक्लूजन। तो आपका जो थ्योरेटिकल जो थ्योरी है, वो थ्योरी उसको सपोर्ट कर रहा है क्या, राइट? मतलब जिन लोगों ने आपको डेटा शेयर किया, उनके बारे में जब आप कंक्लूड कर रहे हो, तो डज इट बेस्ड ऑन योर थ्योरी, राइट? डज योर एनालिसिस ऑफर देम डीपर इनसाइट्स अबाउट देयर लाइव्स एंड वर्ल्ड? मतलब जिन लोगों का जैसे कि आपने मान लो कुछ लाइक फॉर एग्जांपल लाइक you have considered the weaker section of the society, underprivileged class of the society, and you have collected data from them and you drawn important conclusion. लेकिन आपने जो conclusion निकाले, क्या ये रिसर्च इथिक्स में भी आता है? आपको बताओ कि जो कंक्लूजन आप निकाल रहे हो, तो क्या सचमुच वो कंक्लूजन उनके काम के हो सकते हैं? क्या आप just for the sake of research, just for the sake of publication आप कंक्लूजन निकाल रहे हो and you are least bothered about their impact of that on their lives? वो जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आप क्वालिटी इंश्योर नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट यू कॉल रेजोनेंस। फोर्थ इंडिकेटर है सोशल रेलेवेंस एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने बताया कि व्हाट इज सोशल एंड थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्क। जो काम मैं कर रहा हूँ वो सोशल इम्पैक्ट कुछ क्रिएट करता है क्या, सोसाइटी के कुछ इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने में कुछ काम में आता है क्या। हैव यू आइडेंटिफाइड, मोरओवर हैव यू आइडेंटिफाइड स्ट्रेंथ। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि यार ये कैसे इनकलकेट करें, सोशल रेलेवेंस मेरे रिसर्च में कैसे इनकॉर्पोरेट करें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं। इफ यू रियली वांट टू एंश्योर दैट your research is going to be useful for the society, what you need to do? सबसे पहले अपना SWOT एनालिसिस करिए, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करिए। आपके स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप होगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई द इश्यूज, सोसाइटल इश्यूज। रिसर्च शुरू करने के पहले, जब आप रिसर्च इनिशिएट करेंगे उससे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। अब लिखिए ना 1 2 3 4 आपकी जितने भी स्ट्रेंथ है, एंड देन यू नीड टू कीप ऑन रिकॉर्डिंग सोसाइटल इश्यूज। आप मान लो नागपुर में रहते हो, तो नागपुर की आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इश्यूज पर्टेनिंग टू योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर पाओ, नहीं, ऐसे इश्यूज आप आइडेंटिफाई करिए कि जो आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से मिलता जुलता हो, ताकि आप उसको रिजॉल्व कर पाओ। सो यू स्टार्ट identifying issues, like if you are living in Nagpur, you start identifying issues related to your area of expertise which are there in the नागपुर में आपको इश्यूज नहीं मिलेगा। आप पूरे विदर्भ रीजन में देखिए, विदर्भ रीजन में नहीं मिल रहे, आप आपका दायरा बढ़ाइए, महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में भी नहीं मिल रहे, आप इंडिया में देखिए, इंडिया में भी आपके एक्सपर्टीज से मिलते जुलते कोई इश्यूज आपको मिलने रहते, देन यू कैन गो बियॉन्ड, यू कैन कंसीडर लाइक अदर कंट्री एज वेल। Try to identify those issues and then identify करने के बाद आप do proper mapping। मैपिंग करना बहुत जरूरी है कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है और इश्यूज आप कौन सा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने गलत मैप किया, मतलब आपके एक्सपर्टीज कुछ एक एरिया में है, इश्यूज आपने कुछ करना, कुछ पीएचडी में कुछ और रहे हो आप, तो क्या होगा, क्वालिटी इंश्योर कर नहीं पाओगे क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ वो नहीं है, एंड देन स्टिल यू आर डूइंग रिसर्च इन दैट पर्टिकुलर एरिया, सो you will not be able to produce quality data, and which is not going to be useful for the society as well. And once you do the proper mapping, decide the priorities। मान लो आपके 5 इश्यूज और 5 आपके स्ट्रेंथ है, आपने प्रॉपर मैपिंग किए, प्रायोरिटी क्या है, what would be your highest priority out of those 5 topics, what would be your highest priority, that should be taken first, that should be addressed first, and then accordingly social relevance can be adopted। और आप देखिए कि जो भी नेशनल मिशन होंगे हमारे देश के, वो नेशनल मिशन के साथ जुड़ता हुआ कोई टॉपिक मैं ले सकता हूँ क्या। जैसे मैंने बताया कि क्लीन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, these are some of the, there are many national initiatives, these are the some of the national initiatives। आप देखिए कि उस नेशनल इनिशिएटिव के साथ कुछ आप कर सकते हो क्या। एंड देन नेक्स्ट इज यूजफुलनेस। Does your analysis offer interpretation that people can use there in their everyday's work? जैसे मैंने फिर से वो एग्जांपल फिर से रिपीट करता हूँ कि आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो, आपने कुछ सोसाइटी को कंसीडर किया, उनसे डेटा कलेक्ट किया, एंड देन यू आर ड्राइंग सम कंक्लूजन। आप देखिए कि जो कंक्लूड आप कर रहे हो उस सोसाइटी के लिए कुछ काम में आने वाले है भी या नहीं। अगर नहीं है तो व्हाई यू आर डूइंग दैट। आप don't do mockery with the don't do compromise, forget about mockery, don't do compromise। मतलब केवल आपको पता है कि आपके जो कंक्लूजन है वो सोसाइटी के बिल्कुल ही काम में आने वाले नहीं है, बट स्टिल यू डोंट वांट टू स्पेंड। जब भी आपको लगता है कि whatever conclusion you have drawn,
which is contradictory to their requirement, तो आप फिर से जाइए, फिर से डेटा कलेक्ट करिए. आपका इंटरप्रिटेशन कहीं गलत हुआ होगा, टूल्स जो आपने यूज किए वो गलत होंगे, वो आपको रिफाइन करना पड़ेगा, फाइन ट्यून करना पड़ेगा. डू योर एनालिटिकल कैटेगरी सजेस्ट एनी जेनरिक प्रोसेसेस? आपने जो भी कैटेगरीज डिसाइड किए वो जेनरिक प्रोसेस को सपोर्ट करने वाले हैं क्या? राइट? कैन द एनालिसिस स्पार्क फर्दर रिसर्च इन अदर सब्सटेंशियल एरियाज? आपको आपने जो भी फॉरगेट अबाउट डायरेक्ट यूज, आपके कम से कम एक दूसरा एरिया, मान लो आपने एक एरिया में आप काम कर रहे हो, बट वट एवर डेटा यू आर गोइंग टू जनरेट और यू हैव जनरेटेड, दैट डेटा कैन बी यूजफुल फॉर सम अदर एरिया, राइट? इफ इट इज द केस, स्टिल इट इज ओके. डायरेक्टली आपका सोसाइटी रेलेवेंस नहीं होगा, बट वट एवर डेटा यू हैव जनरेटेड, दैट डेटा कैन बी यूजफुल फॉर टैकलिंग, for initiating research in other aspect. That is still okay. Okay, that is still okay. And then most importantly, how does your work contribute to knowledge? How does it contribute to making the better world? मतलब आपका subject जो है, forget about anything, forget about society now. As far as your own subject is concerned, whatever data you have generated, does it going to provide any enrichment in your own subject? If not, then how it is going to be useful? So this is the kind of usefulness we need to consider. And then next is credibility of the topic. पहले मैं credibility of the topic बोलता हूँ. So credibility of the topic means, is the data sufficient to merit your claim? जैसे मैंने पहले बताया कि आपने hypothesis में जो claim किए थे, right? And then data accordingly जो data आपने generate किया है, तो क्या whether this data is going to be enough to substantiate claim which you have made in the hypothesis? If not, then you need to go back and change the hypothesis, right? Have you made a systematic comparison between observations and your strategies? जो आपको data मिला है, जो observations आपको मिले हैं, that and then your strategies, have you made comparison? मतलब आप करना कुछ और चाहते, जैसे क्रिकेट में होता है कि मतलब वो अपना बॉलर जो है, सॉरी बैट्समैन जो है, बॉल खेलना चाहता है एक तरफ, बॉल जाता कुछ किसी और तरफ. क्रिकेट में तो चल जाता है, रिसर्च में नो. लाइक whatever strategies you have adapted, accordingly you need to compare your strategies with your observations and see whether there is a coherency or not. If not, you need to go back and make the changes. And credibility of researcher is also going to be important. आपको देखना पड़ेगा कि like the group in which you are working, you could be a new research scholar, लेकिन जिस ग्रुप में आप काम, जैसे कि ये दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर पब्लिशिंग डेटा इन गुड जर्नल. जब भी आप आपका डेटा गुड जर्नल में सबमिट करते हो, तो वो एडिटर, वो रिव्यूअर देखेगा कि भाई इन लोगों का क्रेडिबिलिटी क्या है, इन लोगों का पहले क्रेडेंशियल क्या है. तो आप कहेंगे कि यार मैं तो नया रिसर्च स्कॉलर हूँ, ये तो मेरा पहला रिसर्च पेपर है, हाउ आई एम गोइंग टू हैव द क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिश पेपर, अर्लियर पब्लिश पेपर. आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं, आपके रिसर्च ग्रुप की क्रेडिबिलिटी देखी जाएगी. मान लो आपका जो पीएचडी एडवाइजर होंगे, वो पीएचडी एडवाइजर के तो पहले पेपर पब्लिश होंगे, तो वो उन आपके पीएचडी एडवाइजर ने पहले पेपर्स किस जर्नल में पब्लिश किए हैं, वो डेटा कितना यूजफुल है, दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड. What is your previous published work, as I mentioned earlier, and what infrastructure you have developed so far, that is also equally important. क्योंकि आप अगर what infrastructure doesn't mean that equipment, infrastructure in कभी-कभी infrastructure equipment in terms of equipment होगा, कभी-कभी infrastructure in terms of intellectual manpower. How many intellectual manpower, how many intellectual resources you have created, that is also going to be very important. And here I'm going to tell you, if you really want to do the quality research, I'm going to tell you what are essentials and dispensables in quality research. What are essentials? These are the essentials, like a smart idea, which is what we call as hypothesis. देखिए, why it is important? देखिए, आज अभी तक जो भी मैंने कहा, I am not saying anything new. I know, I'm sure that everybody, you are well aware of this. खाली ऐसा होता है कि हमें पता है सब कुछ, लेकिन हम कर नहीं पा रहे. सब कुछ पता है, हमें कर नहीं पा रहे, करना नहीं चाहते बहुत बार. सो अभी ये जो मैं इसेंशियल बता रहा हूँ, ये भी आपको सबको पता, सब कुछ पता है. हाइपोथेसिस मतलब एवरी रिसर्च स्टार्ट विद हाइपोथेसिस, लेकिन आप देखिए हाउ मेनी ऑफ अस हैव अ सेंसिबल हाइपोथेसिस. सेंसिबल हाइपोथेसिस, देखिए जब भी हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, यू नीड टू हैव योर अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड द इनिशियल हाइपोथेसिस, right? Alternate and initial hypothesis, what does it mean? Like agar a plan A and plan B, this is what you call as, one is positive statement, other is negative statement. You are like ये मैं ये करने से ये होगा, this is your positive statement. Alternative hypothesis ये होगा कि अगर मान लो ये नहीं हुआ तो I am going to do this.
Okay, this is what we call as alternate hypothesis. This is going to be a smart idea. This should be generated only through rigorous literature review. आजकल ऐसा होता है कि जब भी हमें पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है तो वी टेक इट वेरी कैजुअल, वी टेक इट वेरी, आई मीन हम मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग 8 दिन बैठते, 2-4 पेपर कलेक्ट करते हैं, सिनॉप्सिस लिखते। नो, इट इज अ वेरी रिगरस एक्टिविटी, वेरी सीरियस एक्टिविटी, इट नीड एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स। मैं तो कहता हूँ कि इफ रियली सीरियस यू नीड 6 months, बट इफ नॉट एटलीस्ट 2-3 months, because you need to collect, as I mentioned earlier, जो literature review मैंने बताया उस टाइप का literature review करना है, then only you will be able to have the hypothesis. हाइपोथेसिस के बाद में आपका सेटअप ऑब्जेक्टिव्स रेडी होंगे, मेथोडोलॉजी रेडी होगी, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी प्रिपेयरिंग प्लान्स टू एग्जीक्यूट दोस ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट होगा रिसोर्सेस एंड इन्वेस्टमेंट। रिसोर्सेस व्हाट, like whether whatever methodology you have finalized for your research, do you have adequate resources for doing that? क्योंकि रिसोर्सेस आपके नहीं होंगे तो क्वालिटी रिसर्च आप कर नहीं पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम करना बड़ी बड़ी बातें हम करते, उसके लिए रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते। जैसे कि मान लो आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज करके आपको कुछ सिमुलेशन करना है, आपका डेटा आपको इंटरप्रेट करना है कुछ सॉफ्टवेयर यूज करके, जो सॉफ्टवेयर को एक्सेस आपको नहीं है। So how you are going to do that? You will be compromising. Don't do that. So whatever resources you are having, with reference to that, you need to select your topic. Investment in terms of time, quality time. बहुत बार ऐसा होता है कि 3 साल का ड्यूरेशन है पीएचडी का, तो बच्चे जब स्टूडेंट जब रजिस्टर करते हैं 3 साल के बाद में उनको लगता है कि चलो अब 3 साल हो गए, लेट मी सबमिट दिस। लेकिन भैया आप मुझे बताओ कि हाउ मच टाइम क्वालिटी टाइम यू स्पेंड, बिकॉज यू आर नॉट spending quality time in your research, you are not going to end up with quality data. Proper guidance is also equally important. जो बंदा पीएचडी एडवाइस कर रहा है, मतलब पीएचडी एडवाइजर, पीएचडी गाइड, अगर उनको खुद को पता नहीं कि प्लेगरिज्म क्या है, उनको पता नहीं है लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, उनको खुद को पता नहीं कि हाइपोथेसिस और assumption में फर्क क्या है, उनको पता नहीं कि जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रिव्यू क्या है, तो वो क्या खाक अपने स्टूडेंट को बताएगा? तो अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हो एंड अनफॉर्चुनेटली योर पीएचडी एडवाइजर डजंट नो दिस, he doesn't have that exposure, my request would be you try to identify one person to whom you're like who is aware of all those things, and try to have interaction with him once in a month at least, so that you will get updated and you will be on track for quality research. Next is sincerity and consistency. Because if you really want to do quality research, you need to be sincere, you need to be consistent as well. Now, so why sincere? Because sincere का मतलब ये होता है कि भाई जो आपको काम करना है, there are two things. Like if you are PhD student, like whatever you have been advised to do, you need to do that, number one. And if you are आप खुद PhD मतलब आप खुद आपका PhD हो चुका है लेकिन आप independent research कर रहे हो, तो whatever it is expected to do, आपको जो करना चाहिए वो आप कर रहे हैं क्या, या कुछ bias हो कि आप compromise कर रहे हो? So, I mean, you are losing sincerity, number one. Consistency means like whatever the efforts you are doing, you need to be consistent. Like जैसे मैंने बताया ना कि आपने डेटा कलेक्ट किया एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ द सोसाइटी का, आपने मतलब for data collection itself it took let's say 6 months, 2-3 महीने आपको इंटरप्रिटेशन के लिए लगे. At the end of 9th month you could see, जब आप डेटा इंटरप्रेट कर रहे हो तो पता चलेगा कि यार जब मैंने डेटा कलेक्ट किया ना, वहां पर कुछ पैरामीटर्स मैंने गलत सेट किए और डेटा ही मैंने गलत कलेक्ट किया, आपको पता चल रहा है. बट व्हाट यू आर डूइंग कॉम्प्रोमाइज, यू आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस, यू आर बायस्ड. मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको समझते हुए भी उसको नजरअंदाज कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो. यू आर नॉट कंसिस्टेंट. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो बैक, मेक द फाइन ट्यूनिंग, नंबर वन. Second example of consistency is, let us say you have not done any mistake, but this is only one short data. This is data collection from one particular class of the society. If you really want to ensure that the same, replicability of your research, because you see research, one of the characteristics of research, quality research is cyclic process. Research is cyclic process. So आपको देखना पड़ेगा कि ये जो रिसर्च है ये रिपीटेबल भी होना चाहिए, तो रिप्लिकेबल होना चाहिए. अगर रिप्लिकेबल होना चाहिए तो आपको एक सोसाइटी आपने कंसिडर किया, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई सिमिलर सोसाइटी, collect the similar kind of data, do the similar kind of interpretation, see whether you have got some coherence about that or not. This is what the resonance could be, right? If you are not doing this, you are not going to have the quality. And then last one is patience. Because in research, patience is very very important. बहुत बार ऐसा होता है कि हम मतलब काम करते रहते और ऐसा लगता है कि कुछ आउटपुट आ ही नहीं रहा.
मान लो आप स्टैंडर्ड जर्नल में पेपर अगर पब्लिश करना है, तो आप पेपर सबमिट कर रहे हो, आपको पता लग रहा है कि यार पेपर कंटिन्यूअसली रिजेक्ट हो रहे, डोंट गेट डिमोरलाइज। आप देखिए कि पेपर रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। जब आपको पता चलेगा कि पेपर रिजेक्ट हो रहे, यू एड्रेस दैट प्रॉब्लम एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू बिकॉज फेलियर इज ऑलवेज गोइंग टू बी वंडरफुल एग्जांपल ऑफ लर्निंग। जब भी आपके पेपर रिजेक्ट होते हैं, तो फ्रॉम दोज फेलियर्स यू विल बी, आई एम श्योर लाइक those failure is going to provide you wonderful opportunity to learn many things, and if you could take in that sense, I'm sure that your failure can be converted into success. उसके लिए patience होना बड़ा जरूरी है research में। these are some of the essentials in research. there are some dispensables, like dispensable आपको बताऊं, avoiding library visit। आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम NAAC विजिट पे जाते हैं, बिकॉज आई हैव विजिटेड NAAC कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, मेनी कॉलेजेस इन द कैपेसिटी ऑफ NAAC टीम, एंड हम जब देखते हैं तो कॉलेजेस जो है सब फेक डेटा देते लाइब्रेरी विजिट का। मतलब उनके पास आजकल स्टूडेंट टीचर्स लाइब्रेरी में विजिट करते ही नहीं, and they have their own justification. वो कहते कि nowadays like we have got all e-resources available, we made them available in the respective department, and even we have remote access as well, and everything is available on tip of their finger, blah blah blah. They have many claims, लेकिन आपको बताऊं कि there are many word references which are not in digitized form even today. ऐसे बहुत सारे word references है digitized form में है ही नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए तो आपको लाइब्रेरी में जाना ही पड़ेगा। तो अवॉइडिंग लाइब्रेरी विजिट इज वन ऑफ द डिस्पेंसेबल। प्लेगरिज्म इज अनदर, क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट। तो बहुत बार दैट एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आप अगर देखोगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के प्लेगरिज्म के इश्यूज इंटरनेट पे अवेलेबल है। टीचर्स के, बड़े बड़े सीनियर टीचर्स है, बड़े साइंटिस्ट के। उसका रीजन ये है कि बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको लगता है कि यार जब काम करते समय जब वो नेट पे सर्च करते हैं, उनको लगता है यार दिस इज नाइसली ड्राफ्टेड, ये बड़ा अच्छा काम किया, लेट मी कॉपी पेस्ट इट। और थोड़ा सा उनको लगता है कि मैं उसको रिफ्रेश करूं, वो फिगर को थोड़ा नेचर बदल दूं। नो, ऐसा नहीं होगा। whenever you are doing this you will be caught in plagiarism, and आपको यूजीसी की पॉलिसी, यहाँ पर मेरे पास समय नहीं है, 2018 का यूजीसी का प्लेगरिज्म का पॉलिसी है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हॉरिबल। एनीथिंग मोर देन 40%, if you are teacher you will be removed from the job, and if you are student you will be debarred from submission of PhD, right? So आप देख लीजिए। and avoiding logbook entries, logbook entries बहुत बार ऐसा लगता है लोगों को कि this is only meant for science student. No, this is not only meant for science student. Science के लिए तो है ही, जो लैब में काम करते हैं उन्होंने रिकॉर्ड करनी चाहिए। But apart from that, like whatever work you are doing, you need to keep proper record on your record book every day. Like you are doing literature review, keep the record. If you are doing data collection, keep the record. If you are doing interpretation, keep the record, because this will sometime, because I don't have time to give you another example, another story, tell you another story कि अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्लेगरिज्म में अगर किसी ने आपके खिलाफ अगर केस फाइल किया है, तो आपके पास अगर लॉगबुक एंट्रीज है, तो ये दिस कुड बी रिलीफ फॉर यू। देयर आर मेनी एग्जांपल्स एज वेल कि कुछ लोगों के खिलाफ प्लेगरिज्म के केसेस हुए, लेकिन उनके पास लॉगबुक की एंट्रीज थी, उन्होंने लैब में बताया, एंड देन एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कोर्ट में बताया, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दे गॉट रिलीफ। सो दीज आर द एसेंशियल्स। एंड देन आपको बताऊं कि ऐसा करके आपको क्या करना पड़ेगा, this I'm going to avoid. And then in order to ensure quality, you need to have the collaboration. This is also very very important. You need to have first of all intra departmental collaboration. इसके लिए मैं सीधा एग्जांपल देता हूं आपको। इवन घर में भी जब हम लाइक हमारे स्पाउस के साथ जब भी डिसीजन मेकिंग में, किसी भी फैमिली में डिसीजन मेकिंग में आइदर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई एक अगर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है और दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता, वहां के डिसीजन कभी भी अच्छे नहीं होंगे, कभी भी बहुत इम्पैक्टफुल नहीं होंगे। बट द फैमिलीज इन विच बोथ like husband and wife both are taking both are actively involving in taking decision, आपको बताऊं कि वो डिसीजन मेकिंग कभी भी बहुत अच्छी होती है। सिमिलरली एकेडमिक्स में भी आपको बताऊं कि whenever like आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपके डिपार्टमेंट के कुछ कलीग्स के साथ में आपकी कोलैबोरेशन होनी चाहिए, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग अलोन you will be having certain limitations, right? Limitation in terms of efforts, limitation in terms of knowledge, limitation in terms of exposure. There could be many things. But if you are having one more colleague with you from your own department, he could be a good asset for you.
सो इंट्रा डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन होना चाहिए, इंटर डिपार्टमेंट विद इन द यूनिवर्सिटी और विद इन द कॉलेज। आप जैसे कि इफ यू आर फ्रॉम फिजिक्स यू शुड हैव कोलैबोरेशन फ्रॉम केमिस्ट्री, इफ यू आर फ्रॉम सोशियोलॉजी यू शुड हैव कोलैबोरेशन विद इकोनॉमिक्स। आप देखिए ना, सोशियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हमें अगर स्टडी करने हैं तो इकोनॉमिक्स के और सोशियोलॉजी के टीचर जब तक एक साथ नहीं बैठेंगे तब तक इंपैक्टफुल डेटा क्रिएट ही नहीं होगा। And then you should have collaboration with other university as well, within the city, within the university, within the country and outside the country as well. So if you are having this kind of collaboration, I'm sure the quality of data is going to be very, very impactful, and you will be able to have the resolve the societal issue as well. And at the same time you should have industry collaboration as well. Industry doesn't mean that every time वो जो हम कहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री could be even like press also. Press could be industry. Film industry हम कहते हैं film industry. It depends on your subject. Depends on your subject, because what is the impact, like, because whenever you are talking about industry, because nowadays you see, truly speaking, हमारे जो कस्टमर है एज ए टीचर अगर मैं कहूँ तो लाइक हमारे कस्टमर है हमारे स्टूडेंट, हमारे कस्टमर पेरेंट, राइट? तो हमें अगर इफ यू रियली वांट टू मेक योर कस्टमर सेटिस्फाइड तो हमारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पेरेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, अलुमनाई की एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट क्या है, जब तक मतलब ऑल दिस थ्री स्टेक होल्डर्स आर गोइंग टू योर कस्टमर, स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड द एम्प्लॉयर, दे आर गोइंग टू बी योर कस्टमर। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट जब तक हम सही मायनों में नहीं समझेंगे तब तक हम फाइन ट्यूनिंग हमारे प्रोसेस में नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज बीइंग डन वेरी इफेक्टिवली इन इंडस्ट्री, and therefore you need to have a collaboration with industry, so that will help you, because the way the strategies they are adopting to understand the stakeholder requirement, that will help you to understand your stakeholder requirement, and therefore you should have collaboration with industry as well. So this is how the collaboration is going to be important. And the last quality indicators, and then I will stop, research publication. At the end of the day, you see, whatever research you are doing, unless you do the quality research, you won't be able to nobody is going to give you unless you publish your data in a good journal, nobody going to give you recognition. तो ये कुछ सवाल है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए आई एम गोइंग टू वाइंड अप this. Publishing research as far as our academic fraternity is concerned is going to be extremely important, but we need to understand that rejection is always going to be normal, क्योंकि जब हम अच्छे जर्नल में पेपर सबमिट करेंगे तो रिजेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी नॉर्मल। आप मतलब ऐसा समझना नहीं कि बहुत बार ऐसा होता है कि रिसर्च स्कॉलर अच्छे जर्नल में पेपर इसलिए नहीं सबमिट करते कि उनको लगता है कि यार वहां पर अगर सबमिट करूं तो मेरा पेपर तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। बट लेट मी टेल यू, rejection is very normal process, but we need to understand why research manuscript are rejected. There are two prominent reasons. One is it may not have novelty, and second is deficiency in quality of drafting manuscript. मतलब एक तो नॉवेल्टी नहीं होगी, दूसरा ये होगा कि नॉवेल्टी होने के बावजूद भी आपकी the way in which you have drafted your manuscript, it may not have the quality in that. Okay, तो ये दो मेन प्रोमिनेंट रीजंस थे। ये कुछ डिटेल रीजन है। अगर मैं सवाल करूं, आपको अगर सवाल करूं, उसका जवाब आप बाद में इंटरेक्शन समय दे सकते हो। मेरा सवाल ये है कि मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्कॉलर्स आर नॉट एबल टू पब्लिश द डेटा इन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट। Do you agree with me or not? If truly speaking this is true, if yes, what are the probable reasons? क्योंकि खाली एक्सेप्ट करके नहीं चलेगा, रीजन क्या है? So these are 9 probable reasons. मैं इसको अभी ज्यादा इलस्ट्रेट नहीं कर पाऊंगा, मैं खाली पढ़ूंगा ये। Issues in problem identification, एडुकेट मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते समय अगर प्रॉपरली आप नहीं कर पाए तो आपका पेपर अच्छे जर्नल में पब्लिश नहीं कर पाओगे। लिटरेचर रिव्यू सही नहीं होगा, हाइपोथेसिस आपने सही नहीं किया होगा, जो भी रिसर्च आपने किया उसका सोशल रेलेवेंस नहीं होगा, डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट जो आपने डिजाइन किया उसमें एम्बिगुइटी होगी। आप ये सब सही है लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन आपने प्रॉपर किया नहीं। आपने सब कुछ पहले 5 स्टेप किया लेकिन आपने क्या किया, आपके जो सॉक एनालिसिस प्रॉपर किया नहीं, इश्यूज को आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको मैपिंग नहीं किया, ये सब किया। लेकिन मान लो ये सब कुछ ठीक है, बट समहाउ यू डोंट हैव ड्राफ्टिंग स्किल, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू पब्लिश योर डेटा इन गुड जर्नल। आपको अगर आपकी मैन्युस्क्रिप्ट आपको अगर अच्छे जर्नल में पब्लिश करनी है
तो कभी भी एडिटर पॉइंट ऑफ व्यू और रिव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट रिव्यूअर इज गोइंग टू लुक इनटू द मैन्युस्क्रिप्ट, तो ये 4 पैरामीटर्स है। सबसे पहले वो देखेगा कि नॉवेल्टी है या नहीं, दूसरा देखेगा कि उसमें सोशल रेलेवेंस है या नहीं, और तीसरा देखेगा कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, जो पेपर आप सबमिट कर रहे हो आपका खुद का क्रेडिबिलिटी, आपने इससे पहले कुछ पेपर सबमिट किए या नहीं, पब्लिश उस एरिया में आपने पब्लिश किए या नहीं है। एंड देन ये सब होने के बावजूद भी अगर आपका ड्राफ्टिंग स्किल अगर सही नहीं है तो भी आप ये सब आपके मैन्युस्क्रिप्ट में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये मैं यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। मैं कुछ स्लाइड 5 मिनट में खत्म करूंगा। हाउ टू आइडेंटिफाई जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट। सबसे पहले ये होगा कि इम्पैक्ट फैक्टर। सबसे पहले इम्पैक्ट फैक्टर का सिंपल फार्मूला है जो मैं क्विकली आपको समझाऊंगा। ए बाय बी होता है। व्हाट इज बी? डिनोमिनेटर क्या है? मान लो अगर 2020 का अगर इम्पैक्ट फैक्टर आपको निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो जर्नल में 2020 में कितने 2018 और 19 में कितने आर्टिकल पब्लिश किए। फॉर एग्जांपल अगर कोई जर्नल है जो साल में 12 इश्यू पब्लिश करता है, हर इश्यू में 12 पेपर पब्लिश करता है, तो साल में कितने होंगे? 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144। 2 साल के होंगे 288। सो डिनोमिनेटर 288 फिक्स होगा। व्हाट इज गोइंग टू बी न्यूमरेटर? न्यूमरेटर इज आउट ऑफ टोटल आर्टिकल व्हिच हैव बीन पब्लिश इन 2018-19, वो सभी आर्टिकल को तो 2020 में कितने आर्टिकल को इंडेक्स जर्नल में साइटेशन मिला है, राइट? अभी साइटेशंस इंडेक्स जर्नल क्या है ये भी बात है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मान लो अगर 144 आउट ऑफ 144 आपको साइटेशन मिले तो योर न्यूमरेटर विल बी 144, डिनोमिनेटर विल बी 144 एंड इंपैक्ट फैक्टर विल बी 1। इसका मतलब साइटेशन ज्यादा है तो आपका इंपैक्ट फैक्टर बढ़ेगा, साइटेशन कम है इंपैक्ट फैक्टर कम होगा। लेकिन इंपैक्ट फैक्टर किसका है? दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। पहले जो है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ये देखा करती थी इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बाद थॉमसन रूटर आया है जो आपने यूजीसी में देखा होगा। अभी है क्लैरिवेट एनालिटिक्स। क्लैरिवेट एनालिटिक्स इज बीइंग टेकन केयर ऑफ इंपैक्ट फैक्टर। इसीलिए आप कभी भी जब भी कोई इंपैक्ट फैक्टर क्लेम करता है कोई जर्नल, तो आप देखिए आइदर थॉमसन रूटर और क्लैरिवेट एनालिटिक्स, अगर ये है तो ही वो इंपैक्ट फैक्टर सही होगा या इंटरनेशनल लेवल का होगा, अदरवाइज आप उसको भरोसा मत करिए, राइट? दीज आर सम ऑफ द डेटाबेसेस। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जो, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर सोशल साइंस के टीचर बहुत ज्यादा है और सोशल साइंस टीचर्स को ऐसा लगता है कि ये जो वेब ऑफ साइंस और ह्यूमैनिटीज, वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस में हमारे जर्नल्स होते नहीं है, तो उसकी उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप देखिए पहला कॉलम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, ये है आप देखिए पोर्ट ऑफ वेब ऑफ साइंस, थॉमसन रूटर इम्पैक्ट फैक्टर है इसका, right? Arts and humanities paper journals है, and this is like arts and humanities के there are thousands of journals. Then science छोड़िए, Scopus ये मल्टीडिसिप्लिनरी है, इसका भी इम्पैक्ट फैक्टर थॉमसन रूटर ही देखता है। Scopus में सभी सब्जेक्ट के जर्नल्स है। Then social science citation index, this is specifically meant for social sciences. वेब ऑफ साइंस देखता है, खाली सोशल साइंस के जर्नल्स है, थॉमसन रूटर इम्पैक्ट फैक्टर है, एंड स्प्रिंजर इज आल्सो अनदर। सो इट मींस दैट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, then Scopus, Social Science Citation Index, and Springer. These are some of the platform wherein the social science teacher can publish the data in Journal of International Repute. अब ये Scopus क्या, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि अभी समय नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा जर्नल के 5 पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट है। आपको अगर स्टैंडर्ड जर्नल अगर ढूंढने हैं, क्वालिटी जर्नल्स, सबसे पहले साइट स्कोर देखिए। साइट, जैसे इंपैक्ट फैक्टर पिछले 2 साल के साइटेशन देखता है, साइट स्कोर पिछले 3 साल के साइटेशन देखता है। तो जर्नल की वेबसाइट पे साइट स्कोर है कि आप देखिए, अगर नहीं है तो समझ लेना कि ये जर्नल अच्छा नहीं है। देन सेकंड होगा 5 ईयर इंपैक्ट फैक्टर, कि 5 साल का इंपैक्ट फैक्टर क्या है। थर्ड होगा एचजेआर, एचजेआर इज साइमागो जर्नल रैंक। साइमागो जर्नल रैंक क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज नॉट ओनली साइटेशन, साइटेशन कौन मिले, मतलब क्वांटिटी, इट इज नॉट ओनली क्वांटिटी, क्वालिटी भी, मतलब किस जर्नल से हमें साइटेशन मिल रहे हैं, ये भी एचजेआर देखता है। नेक्स्ट इज स्नीप। स्नीप इज सोर्स नॉर्मलाइज इंपैक्ट फैक्टर पर पेपर। बहुत बार ऐसा होता है कि एक जर्नल में मान लो 12 पेपर है, 12 में से 10 पेपर को अच्छे इंपैक्ट साइटेशन मिला है, लेकिन 2 पेपर है उनको साइटेशन मिला नहीं है, तो क्या वो 2 पेपर को भी उसी लेवल पे रैंक किया जाएगा? नो। तो इसीलिए स्नीप क्या करेगा, उसको नॉर्मलाइज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जर्नल के 5 पैरामीटर रह गए अदर देन इंपैक्ट फैक्टर, साइट स्कोर, 5 ईयर इंपैक्ट फैक्टर, एचजीआर या स्नीप। और आपको कुछ स्नैपशॉट में बताऊंगा। आपको अगर जर्नल फाइंड करना है, नॉन इंडेक्स जर्नल करने थे, जर्नल सजेस्टर springer.com है, जर्नल finder.elsewhere.com है, journalguide.com, ये 3 वेबसाइट ऐसे है कि जहां पर आप आपका ऑब्स्ट्रैक्ट रखोगे तो आपको जर्नल बताएगा।
Only if you are looking only for index journal, then there are two websites, medscienceediting.com और दूसरा है clarivet.com. ये दो वेबसाइट पे जाइए, एक विंडो वहां होगी, आपको एब्स्ट्रैक्ट वहां पेस्ट करिए, आपको सभी इंडेक्स जर्नल, स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल सब आपको मिल जाएंगे, वहां पर आपका पेपर आप सबमिट कर सकते हो. जैसे कि सोशल साइंस के लोग कहेंगे कि हमें पता नहीं है, आप देखिए उनके लिए खास मैंने ये जर्नल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी साइंसेज इंडेक्स की जर्नल लिस्ट है. इसमें अब देखिए टोटल जर्नल्स कितने हैं, 1151. पहला पेज का मैंने स्नैपशॉट यहाँ पर दिया है, पहले पेज का, लेकिन देयर आर 1151 जर्नल फ्रॉम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी साइंसेज इंडेक्स. कुछ जर्नल के स्नैपशॉट मैंने दिए हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक्स एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू, जिसका इंपैक्ट फैक्टर 0.378 है, राइट. ये स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल्स बता रहा हूँ. एनुअल रिव्यू ऑफ लॉ एंड सोशल साइंसेस, इसका इंपैक्ट फैक्टर 2.5 है. Then this is Journal of Finance, the Journal of the American Finance Association, जिसका impact factor है 6.83. Then this is Humanities and Social Science Reviews, ये सभी social science के journals हैं, इसका impact factor है 0.66. Then this is फिर से वही है Humanities and Social Science Reviews. Then this is Contemporary Education Dialogue, education का journal है. Then this is Contemporary Education Dialogue, उसी का है, उसके side score, AJR, SNP, ये सब पैरामीटर पहले पेज पे होंगे ऐसा नहीं, कुछ पैरामीटर पहले पेज पे होंगे, कुछ सेकंड पेज पे होंगे. आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो सब कुछ आपको डिटेल में दिखाई देगा. दिस इज अनदर जर्नल, पॉलिटिकल साइंस रिसर्च एंड मेथड्स, जिसका इंपैक्ट फैक्टर है 1.874. दिस इज अगेन वन मोर जर्नल, कॉमनवेल्थ एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ये सभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सभी ये स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस इंडेक्स क्वालिटी जर्नल्स है, जिसमें आपको एक भी पेपर साल में करते हो तो आपको इंटरनेशनल लेवल का रिकॉग्निशन मिल सकता है. ये साइड स्कोर, एचजेआर, स्निप डिटेल दिया हुआ है. देन दिस इज अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू, जिसका इंपैक्ट फैक्टर 4.06 है. दिस इज जर्नल ऑफ कंटेम्पररी ड्रामा इन इंग्लिश, राइट. दिस इज रिसर्च इन ड्रामा एजुकेशन. दिस इज डांस रिसर्च जर्नल. तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज टू मच नाउ. Now I'm going to conclude because there are many things that I can share with you, like कैसे पब्लिश करना है, रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट अगर ड्राफ्ट करनी है उसका टाइटल कैसे होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट कैसे होना चाहिए, लाइक इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए, रिसर्च डिस्कशन क्या होगा, कंक्लूजन कैसे होगा, उसकी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी चाहिए. एवरीथिंग इज देयर, बट आई डोंट हैव टाइम नाउ टुडे. लेट मी गो थ्रू स्ट्रेट वे द कंक्लूजन नाउ and then I will stop. In summary, if you really want to ensure quality research, we need to have a very honest, committed and focused efforts, because without honest, committed and focused efforts, you cannot ensure quality research. And therefore, thoughtfully prepared research strategies will always lead to quality research. अगर आपने सही मतलब mindset के साथ में अगर आप research strategies को आप अगर define करते हो, तो I'm sure that will lead to quality research. And at the end, thoughtfully drafted research manuscript will always lead to quality document, which will have novelty as well as social relevance, and it will be easily accepted by Journal of International Review. Okay, with this, I'm going to stop here. Let me